Good evening, everyone. My name is Suneshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to this Yog Vasishta evening multilingual study group. रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके आज के सत्र की शुरुआत करेंगे. So let us all close our eyes. एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे. एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे. ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु वंदना करते हैं. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री श्री गुरवे नमः. गुरु का आवाहन करें. गुरु से प्रार्थना करते हैं अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने अंदर जागृत होने वाला विवेक, अपने स्मृति पे तैयार होने वाले इंप्रेशंस, और यदि अब भी अहम का थोड़ा भाव बाकी है तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें. अपने भीतर और बाहर गुरु का सान्निध्य महसूस करें और एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो. जय गुरुदेव. सो अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का आज के योग वाशिष्ठ के स्टडी ग्रुप के 11वें सत्र में पुनः एक बार स्वागत करते हैं. टुडे वी आर ऑन डे 11th. So let's continue. So yesterday we saw how Vashishta told about his own story, then how he has guided Rama, about all other things. He also spoke about Purushartha. We also spoke about other aspects of this, something called as whether it is luck, daiva, or whether it is the sanchit karma, or it is the karma which is we are doing today, and which actually takes over upon each other. So all those things we discussed in the last few sessions. So now we will continue looking at, we also saw something called as very important, that is called as Purushartha. Because unless and until we do our Purushartha, we don't do our give our 100% and don't do this
dharma, artha, kam, and moksha, all those four aspects of purushartha. Till then it's really become difficult even to get this liberation and get this success that you are looking for in your life. Whatever your goal is there in life, it becomes really difficult for us to achieve that goal. Then today, Vasishtha Muni continues and gives Rama four more pillars. So this chapter, which we are in second chapter, the first chapter that we saw was related to Vairagya Prakarana, that is a dispassion of Lord Rama. That is where he raises multiple questions to Vasishtha Muni, and Vasishtha Muni have now started addressing it one by one, slowly and gradually. He is now touching upon each and every small corner that ignorance is there. Now he is washing off that ignorance by giving these small tiny threads, small shlokas, small, but very powerful. That very powerful. So today Vasishtha Muni talks about, there are four pillars of this moksha, the one who is wanting to attain moksha, the one who wants to be free. No, if he wants like that, then there are four things that helps him. No? So what is it that the first thing? So he says, Shama is the first. Then your Vichara is the second. That your third is your Trupti, Santosha. And the fourth is Sadhu Sangati. What is all these four things? So the first one is Shama means the peace of mind. No? You need to be established in that pure state where you experience the peace of mind, irrespective of in what situation you are in. If you are able to be stable, if you are able to be calm and composed, so that indicates the quality of Shama, peace of mind. The second one is Vichara. Vichara means the good intention, good thoughts in our mind. That is very important, because whatever actions that we do, whatever karma that we do in our life are initiated at the level of your thoughts first. Somebody does something, they have thought about it at one point of time, then they continue to think about the same thing again and again, and after some time that manifests into action. Not all thoughts get manifested in action, some of them do get manifested in actions. So it's very important to, if we are walking on this path and if we want to attain what we want to attain, it's very important to have that vichara, that thoughts, that intentions in our mind. That sankalpa has to be there. Now that is the second thing he touched upon. The third thing he touched upon is something called as contentment, trupti, santosha. These are also very important. Many people we see, they are not, seems to be happy despite of having so much. उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं झलकती. We don't see that smile on their face, despite of having everything in life. So it is very important to walk on this path. It is very important to have that contentment also in life. And the fourth one he explained is the sangha. You got to be company. You got to be in the company of good people. It's very important that sadhu sangha, the one who are enlightened, the one who are walking on this path, the one who is involved into seva, it is worth having their company in life. Satsanga bola, the one who practice satya, the one who practice truth. It is a good idea to remain in their company. सो इसके थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं, देन इसके ऊपर डिटेल्ड में हम लोग चर्चा करेंगे. तो हमने देखा कि पहला जो प्रकरण था अपना, उसमें हमने प्रभु रामचंद्र जी का वैराग्य देखा. वहां पे वो किस तरह से भ्रमण करके आने के बाद उनको किस तरह से दृष्ट की संसार की पूरी दुर्दशा देख के उनके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं और उनके मन की कुछ स्थिति इस तरह से बन जाती है कि वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाती. यह इसको अपने जो अभी आजकल का जो डिप्रेशन वगैरह है उसके साथ कंपेयर नहीं करना. डिप्रेशन इज अ डिजेक्शन ना, डिप्रेशन एक बहुत अलग चीज होती है. और यहाँ पे जो वैराग्य आया है, परिपूर्णता होने के बाद
ऐसा लगता है कि अब मेरे को इसमें कोई रस नहीं रहा। वो वैराग्य वहां पे, इसकी वैराग्य की बात है ना, कुछ तो ज्ञान आ गया, कुछ तो अंदर जाग गया, उसकी वजह से डिस्पैशन जो आया वो आ गया, उस सुख की लालसा भी ना, ये छोटी छोटी लालसाओं में मन नहीं उलझता मेरा भी, अबे मुझे उस परम सुख की अनुभव की अपेक्षा है, यह मन में जब उत्पन्न हो जाता है तो वैराग्य आपको छू लिया ऐसे समझ सकते हैं। कस्य सुखम न करोति विरागा ना, शंकराचार्य कहते हैं कि विराग वैराग्य में क्या ऐसा सुख है जो तुम्हें वैराग्य नहीं दे सकता ना, इट कैन गिव यू एवरीथिंग ना। जब वैराग्य वो आ जाता है और ना, सारी डिजायर तुम्हारी अपने आप फुलफिल होने लगती है, वो सारा जो तुम्हारा इच्छाएं होती है वो अपने आप तुम्हारे कदमों में आके वो गिरती है ना। इस तरह का वैराग्य वहां पे प्रभु रामचंद्र जी अनुभव करते, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती है, या उन्हें अपने को ये ज्ञान मिलना चाहिए इसलिए नाटक किया होता है, ऐसे ही कह सकते हैं। तो जो भी है, लेकिन उसकी वजह से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो प्रश्न पूछते हैं, उनके मन में कहीं अभी भी कहीं पे कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं कि जिसको थोड़ा अभी भी थोड़ा पॉलिशिंग की, क्लींजिंग की थोड़ी जरूरत होती है, या उस तरह से प्रश्न पूछते जाने, ताकि जो ज्ञान जो ऋषि मुनियों के पास छुपा होता है, ऋषि मुनि बातें नहीं करते एक्चुअली जब तक ना पूछा है ना, तो उनसे वो पूछते हैं तो फिर वो ज्ञान उजागर होता है। तो शायद इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी ने सारे प्रश्न उनके सामने रखते गए। फिर दूसरा, यह वैराग्य प्रकरण पहला देखा हमने, दूसरा प्रकरण में फिर जो लोग यह चाह रखते हैं ना कि मुझे वो मुमुक्षुत्व प्राप्त कर, मुमुक्षुत्व माने क्या, जो लोग सारे उस मुक्ति की, उस आत्मज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के उनके मन में वो शुद्ध वासना उत्पन्न जागृत हो जाती है, उन्हें हम लोग मुमुक्षुत्व, और उसका फिर व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण में हमें वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को उद्देश्य देते हुए समझाते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो अपना पुरुषार्थ होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी मार्ग पे आप चलो, या आप बिजनेस कर रहे हो, या आप गृहस्थ हो, या आप गृहिणी हो, या आप अध्यात्म मार्ग पे चल रहे हो जीवन का, या आप विद्यार्थी हो, जो कोई भी आपके जीवन का जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के लिए आपको अपना प्रयत्न की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसके रिजल्ट जरूर जरूर मिल जाएंगे ना। तो अपने प्रयत्न हर एक क्षण में 100% देना, अपना 100% देना, ये हमें अपने प्रयत्न करते रहने चाहिए। तो हमने ये भी सुना गुरुदेव से कि यह पुरुषार्थ को क्या कह सकते हैं, तो गुरुदेव बोलते कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी जो अपना जो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, वो उद्देश्य ना वही पुरुषार्थ कहलाता है। तो यह जो विचार है ये मन में पुरुषार्थ का आना चाहिए और इसका जिंदगी में अमल होना चाहिए। फिर आगे चल के बोलते पुरुषार्थ जब की बात करते तो अक्सर लोग दैव की भी बात कर लेते हैं इसमें, है ना। तो बोलते दैव और पुरुषार्थ में दैव वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, जो कुछ भी अपने संचित कर्म होते हैं वही तुम्हारा इम्प्रेशन होता है, और उस इम्प्रेशन को काटने के लिए आपको अभी और कर्म करने पड़ते हैं ताकि उसको आप काट दे, या ध्यान के जरिए भी उनको हम लोग संचित कर्मों को, इम्प्रेशन को हम लोग वाइप आउट कर सकते हैं ना। तो अलग अलग तरह के तरीके बताए होते, जब भी ऐसा कुछ करने लगते हैं तो दोनों में वो द्वंद्व चलता है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो, और जो पुराने जो इम्प्रेशन है वो, तो बोलते जिसमें जो बलवान होता है वो जीत जाता है। इसलिए बोलते हैं डोंट वरी अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस, फेलियर का था, लेकिन आज यदि आप अपना 100% देके अपना 100% लगाते हो किसी भी काम में, जरूर फिर आप उसमें जो सफलता है वो हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से उसे भी जो लक लेके लोग जो बोलते दैव के इसमें चक्कर में फंस जाते हैं, वहां से भी वो इग्नोरेंस को भी, वो अज्ञान को भी यहाँ पे वशिष्ठ मुनि दूर करते हुए दिखाई देते हैं। फिर आगे चल के बोलते हैं कि इस मार्ग पे चल रहे हो रामा, तो जरूर तुम्हें इसके जो द्वारपाल है, अभी तुम्हें इसका मोक्ष का जो अनुभव लेना चाहते हो, आत्मज्ञान की जो प्राप्ति की तुम लालसा मन में रखते हो, उसके लिए तुम्हें यह 4 द्वारपालों के बारे में जानना बहुत बहुत आवश्यक है। तो कौन से 4 द्वार बताते हैं, तो कहते हैं कि पहला है शम, दूसरा है विचार, तीसरा है संतोष, और चौथा है साधु संगति। तो बोलते हैं इन 4 द्वारोपालों का अपने जीवन में होना बहुत बहुत आवश्यक होता है टू अटेन मोक्ष
तो आत्मज्ञान, जो अपना आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति के लिए इन चारों का अपने जीवन में होना आवश्यक होता है। और फिर इसके ऊपर वन बाय वन एक एक करके वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी को पूरा उसमें डिटेल में बताते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो डिटेल्स अभी क्या है, वन बाय वन तोड़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। हाँ, इसके ऊपर कुछ कंट्रीब्यूशन है तो या कुछ प्रश्न है तो वो भी हम लोग लेंगे। तो पहला जो फर्स्ट varpa means the first means to obtain this moksha is that shama. Shama means the peace of mind. Now, what is this peace of mind? So we all have experienced turbulence in our life, right? Otherwise, we wouldn't even experience peace. शांति का अनुभव नहीं होता है यदि आपने अपोजिट उसका अनुभव जिंदगी में नहीं किया है. So it is that peace of mind. So one who is established in this peace, how these people are, how do they behave? They remain stable. In any situation, if you go and find them, their smile will be there. They will keep smiling irrespective of whatever the situation around is, whatever the kind of people they are standing in front of. All these other external things doesn't seems to be touching the core center of their existence. They are so established in their own self. So they are calm. They are, despite of having all these other vasana, vishaya, all those panchendriya and external attractions, all those things. Despite of that, they seems to be doing all the things. Whatever the karmas, whatever the action, their routine duties, they all seems to be doing everything in life. But despite of that, they are completely detached. They are established in the peace. So that is called as shama. How to attain shama is obviously another question. So कहते हैं, then Vashishta Muni explains this, and there are other references from other books also. So there is something called as this shama is one of the Shata Sampati. There are 6 more things like this, shama, dhamma, and all other things. So we will talk about it sometime later. Shata Sampati. Here the reference is not there, so we just limit ourselves to shama and dhamma. So this dhamma is also very important. So how do we attain peace of mind? How do we attain? Because these other faculties of our own existence doesn't seem to keep you at one place. Now this kama, krodha, lobha, mada, moha, matsara, and all these attractions of the 5 senses keeps on moving you towards outside. Then how can we get inside? How do we get established inside? So there is a second thing that is being told is called something called as dhamma, which is also mentioned. We read about it here, but it did not explain it. What is this dhamma is all about? Dhamma. The one who has done accompanying advanced course, they probably definitely have in-depth more knowledge and experience of this dhamma. So it's a good idea to keep doing your advanced course once in 3 months, 4 months, 2-3 times in a year. It's a very good idea to go deeper within and experience what this shama really means. No? That's very, very important. So what is this dhamma is all about? This dhamma means self-control. What is this self-control? Self-control from what? Self-control from all these 5 senses. Now these 5 senses, what are those 5 senses? The sense of touch, the sense of smell, the sense of taste, the sense of hearing, and the sense of sight. All those 5 senses. What they do? All these 5 senses attract you towards outward temporary pleasures. This is exactly Prabhu Ramchandra ji also raised a question that Vashishta Muni ji, hey Rishi Munivar, I am not interested in all these small temporary pleasures in my life. I want something which is permanent in nature. So this is what is we actually happens when the self-control is not there. When dhamma is not there. So कहते हैं ना, अरे हम लोग we also many times we say this ना, अरे उसमें तो दम नहीं है. दम नहीं means what? उसमें वो शक्ति नहीं है, उसमें वो पावर नहीं, दम नहीं बोलते उसमें. So we do not have that strength to say no. I don't want it. Whatever delicious, delicious this dish is, I am done. I'm done with my lunch. I'm done. I do not want it. Whatever the beautiful this scenery is, ना कितना भी सुंदर यह दृश्य है, but
right now it's time for me to meditate. I'll close my eyes. I'm not interested. Not interested in anything. Those three principles बताए ना. When we do meditation, I'm nothing. I don't want anything. I'm doing nothing. These are the three principles when we meditate helps us. These are the mool mantras of meditation. Yeah. So whatever this beautiful scenery is there right now, it's time for me to sleep. I'll go to sleep. Oh, it's already 10 o'clock. I want to follow my wellness regime. I want to follow my sleep regime. I'm not interested in this beautiful or very good movie or very good serial or that all that goes on and your Netflix on or your Amazon videos and whatnot. But right now I have that self-control. I have that Dhamma. I want to be established in this. I'm not interested. Whatever this beautiful opposite person is there, no? You usually get attracted towards opposite sex, and usually in youth that happens. And sometimes if you are not having Dhamma, that self-control, it even continues even after when your body is not capable of functioning. No? That is what is this vasana, that is what is this desires do with us. No? That is, those are called as vishayas. No? So these things, so when you are established in that self-control, when you established in that Dhamma, that point of time, then that translates into peace of mind. At any given point of time, such attractions doesn't allow you to get outward direction, but you are ready to go inward to experience that peace what you are. We are searching for the peace outside. We शांति को बाहर ढूंढते रहते हैं ना. We keep searching for it outside, but where the peace is? The peace is really within us. It is what we are made of. It is that love. It is that joy. It is that peace of mind which is there within us. How to attain that? By exercising, by implementing the principles of self-control in our life. Self-control on what? Kama, Krodha, Lobha, Mada, Moha, Matsara. All the five senses and its attraction, all those vishayas, no, which comes into existence, all those external objects, external situation, and external people, which keep distracting us from our goal. No? We need to, at one point of time, say, thank you so much, I'm not interested. Then your self-control is definitely can be established. What does it helps to exercise this self-control? So these practices of yoga, pranayama, meditation, sudarshan kriya, and vachanas, and the knowledge that has been given by Gurudev. Sadguru ka hona जीवन में बहुत important. It is important to have a master in life, the one who makes us meet with our own self. So his vachana, his guidance, his principles, his path, that path which he has shown to us, it is very, very important to adopt those, to implement those. It's worth implementing those things in our life. Then you are established. Then you have that self-control. Then you start experiencing the peace of mind, shama. It is the practice. No? It is, you have to keep on doing. Punah, punah kehte, no? It's, you have to keep practicing this shama and Dhamma in life. Very, very important. And is also one of the first Dwarpal. It's the first principle that we need to adopt if you want to attain Mukti and Moksha. We will continue on the other three. Probably tomorrow. It's very vast subject. तो अभी शम के बारे में हम लोग थोड़ा हिंदी में भी अनुवाद कर लेते हैं. तो यहाँ पे शम के बारे में बताया. मोक्ष का पहला द्वारपाल है शम. क्या है ये शम? शम का मतलब क्या होता है? शम माने शांति. अपने आप को उस शांति में स्थिर कर लेना ही शम होता है. तो किस प्रकार से होते हैं ऐसे व्यक्ति जो शम को प्राप्त करते हैं अपने जीवन में? तो कहते हैं किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके जीवन में आए, किसी भी प्रकार के लोग उनके पास आए, वो लोग कुछ भी कहे उनको, उनके चेहरे की हंसी कभी ढलती नहीं है. बोलते उनके जीवन में सुख आए या दुख आए, उनके जीवन में सक्सेस आए या फेलियर आए ना, वो अपना हिलते नहीं है. वो दे आर एस्टैब्लिश्ड. वो अपने में स्थित होते हैं, वो शांत होते हैं, प्रशांत. बोलते ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में भी आप चले जाते हैं ना,
तो प्राणी मात्रा भी कहते, बुद्ध जो थे ना, जब वो चलते थे महावीर, तो बोलते उनके आसपास 1-1 किलोमीटर तक वो जो हिंस्त्र पशु जो रहते ना, वो हिंसा करना छोड़ देते थे। बिकॉज उनका ऑरा, उनका जो ये था, ऑरा ही बोल सकते हैं उसको, उनका जो प्रभाव था बोल सकते हैं, उनका प्रभाव इतना गहरा होता था, उनकी मन की स्थिति इतनी शांत प्रशांत होती थी कि उसका असर सब पे होता था। हाँ, तो उस तरह की क्वालिटीज, उस तरह के लक्षण इन सब लोगों में जिन्होंने शम की प्राप्ति कर ली, जिन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली, उनमें यह दिखाई देता है। तो बोलते हैं ऐसे लोगों को फिर वो बहुत ज्यादा, यू विल नॉट सी कि बहुत ज्यादा अरे खूब बहुत एक्साइट हो गए, बिकॉज एक्साइट में भी वो लोग होश को, कुछ लोग ना वो बहुत सुख में भी होश खो देते हैं, एक्चुअली हर्ट भी कर देते हैं, कुछ अपना इतना आनंद में आ जाते हैं और वो दूसरे को गलत सलत कुछ बोल देते हैं, हल्ला में आ जाता है थोड़ा बहुत। तो बोलते हैं ऐसे लोगों को बहुत सुख भी नहीं ज्यादा होता है, कुछ मैटर नहीं करता है, दुख भी वैसा दे डोंट फील ऐसे बहुत दुख में। तो कुछ कुछ लोग होते हैं ना ऐसे बहुत दुख में चले जाते हैं, अपने आसपास के किसी लोग की मृत्यु हो जाती है तो उसमें से वो लोग बाहर आने में बहुत उनको वक्त लग जाता है। कोई कोई जो लोग होते हैं, अपना जो साथी रहता है, आजकल तो हम लोग देखते हैं कितने सारे लोग बिना जानते हुए जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से पास में आ जाते हैं, उसी को प्रेम समझते हैं, जानते ही नहीं कि वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी ना, वी आर मच मोर देन दैट। सो आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वो मिलता है, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, संभाल नहीं पाते अपने आप को, इतना दुख होता है। वो जो ब्रेकअप हो जाता है, वो निगेटिव इमोशन जब आ जाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो बोलते हैं जो अपने आप में स्थित होते हैं, जिन्होंने इस शम को अपने जीवन में उतार लिया होता है, वह इस तरह का व्यवहार करते हुए नहीं दिखाई देते। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये जो षड्रिपु होते हैं, जिनको शांत होते हैं, जो स्तब्ध होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं, उनको ये सब बातें नहीं छूती। जो बाहर के जो अपने पंचेंद्रिय होते हैं, और पंचेंद्रियों से जो उत्पन्न होने वाले अलग अलग प्रकार के जो 5 सेंसेस होते हैं, और उससे जुड़े हुए जो विकार, जो वासनाएं जो जुड़ी होती है, सेंस ऑफ टच हो गया, अपना जो स्पर्श हो गया, देन अपना गंध हो गया, देन अपना रस हो गया, देन अपना ध्वनि हो गया जो सुनते हैं वो, और अपना देखना जो, तो ये जो विषय होते हैं, इससे जो अपना मन बहिर्मुख होते हुए दिखाई देता है अक्सर, तो बोलते जो शांत होते हैं वो इसमें नहीं फंसते। कोई कितनी भी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, मुझे अभी नहीं चाहिए, मेरा पेट भर चुका है, मेरा यह ध्यान करने का समय है, कितना भी अच्छा दृश्य क्यों ना हो, अभी मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। कितनी भी अच्छी सीरियल, कितना भी अच्छा मूवी क्यों ना आया हो, मेरा भी 9:30-10 बज चुका है, इट्स टाइम टू स्लीप नो, मेरा निद्रा का समय हो गया है, अभी कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी कितना भी करने का क्यों ना प्रयत्न कर, कितना भी काम क्यों ना पेंडिंग हो अपना, मैं ध्यान करने बैठा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ, एटलीस्ट फॉर कुछ 20 मिनट के लिए कुछ नहीं मुझे चाहिए। मुझे कुछ करना भी नहीं, कितना भी कुछ ना। इसमें जब हम लोग एस्टैब्लिश हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तब कहते हैं कि शम को आपने जीवन में प्राप्त कर लिया। तो ठीक है भाई, शम को तो इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, शम के जिन्होंने शम में एस्टैब्लिश कर लिया, उनके जीवन में तो इस प्रकार की यह दिखाई देती है, लेकिन इस शम को प्राप्त कैसे करें ना, प्रश्न तो मन में उठेगा, कैसे प्राप्त करें इसको। तो कहते हैं कि इसके लिए आपको अपनी जो प्रैक्टिसेस है, जैसे कि योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया, अपनी जीवन में गुरु का सानिध्य, गुरु वचन ना, उन्होंने दिया हुआ जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज, यह सारा हमें वो एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। तो इसके साथ एक भी चीज बताई जो शक्ति संपत्ति में आती है, क्षमा के बाद जो बोलते हैं दम, दम का भी यहाँ पे हमने आज उल्लेख होते हुए दिखा। तो ये दम क्या है, तो दम कहते हैं अपने ऊपर आपका सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर का आपका जो है ना, कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस वक्त इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। इन जो सारे जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर, जो इस प्रकार के इमोशंस अपने अंदर आते हैं, उनको साइड रखते हुए जो अपने जो विषय होते हैं, जो वासनाएं होती है, जो मन में उत्पन्न अलग अलग प्रकार की डिजायर्स मन में पैदा करती है, तो मुझे कुछ क्षणों के लिए जब मेरा कर्तव्य कुछ और करने का है, उस क्षण मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। यह दम कहलाता है, यह सेल्फ कंट्रोल कहलाता है।
मेरा पढ़ाई का वक्त है, दोस्तों ने बुला लिया, चल यार अभी जाते हैं क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर पढ़ाई खत्म हो जाएगी। तो सो उस वक्त उनको ना कहना, नहीं यार मेरा पढ़ाई का समय है, मैं जॉइन करूंगा, मेरा थोड़ा एक घंटे का पढ़ाई बाकी है, मैं 1 घंटा मेरा पढ़ाई कर लेता हूँ, देन मैं उसके बाद जरूर चलूंगा। हाँ, इसको बोलते हैं दम, सेल्फ कंट्रोल। हाँ, तो जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हो, पुरुषार्थ के साथ आप में यदि श्रम और दम के दोनों के साथ साथ यह आ जाए, तो फिर आप जरूर अपने मोक्ष माने उस सक्सेस की तरफ, उस गोल की तरफ आप जरूर जरूर बढ़ पाएंगे। तो यह है श्रम दम, जो अपना मोक्ष का पहला द्वारपाल है। आज हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। आपके लिए हम लोग ये सेशन खोल देते हैं। आप अपने अनुभव, अपने विचार, आपने जरूर पढ़ा होगा, आपके क्या इसके पढ़ने के बाद आपके क्या अनुभव है, विचार है, तो जरूर आप इसको व्यक्त करें। या आज जो पढ़ने में आया, जो आपने भी पढ़ा होगा कभी कुछ, उसके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछे। ये जरूरी नहीं कि हम लोग उसका आंसर आज ही देंगे या मैं ही दूंगा, एक भी कोई आवश्यक नहीं है। अपने साथ बहुत सारे अपने साधु संग सत्संग हम लोग कर रहे, चर्चा करते, हम में से कोई भी जो जानता है वो दे सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं। हाँ, और अभी हमको नहीं पता है तो सो व्हाट, तो कल देंगे, तो कल देख के देंगे हम लोग, सब लोग उसके ऊपर देखेंगे कि अरे हमको नहीं पता है, तो एक अच्छी बात पता चल जाएगी कि अरे हाँ और भी कुछ जानने के लिए जीवन में है, तो आनंद के साथ उसका भी स्वीकार करेंगे और फिर उसका हम लोग कर भी चर्चा कर सकते हैं। सो आई एम ओपनिंग दिस सेशन नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और if you feel like contributing, you can unmute yourself and you can contribute. बात भी कर सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। Over to you. चैट में भी आप डाल सकते हैं। संगीता जी, would you like to start? Yes. So it was a very, awakening today. It's like awakening, but like enlightening also, that we have to keep all that chum, dum, and those 4 dwarpals. So I just recall a story, a small story here. Mullah Nasruddin had lost a needle, and he was searching outside at the lamp post on the street. So all his friends and everybody, they come and they say, "Oh, what happened, Mullah?" So Mullah Nasruddin says, "I have lost my needle." And they also started searching here, there, but they couldn't find it. So one of them asked him, "Where have you dropped that needle?" So he said, "That needle is dropped at home." And then, "Why are you searching here?" "Because the light is here." So in the same way, we have lost a peace of mind within, and we are searching it outside. In those 5 senses, every time, either, we keep on watching the TV, so we are drained in that. Or, person goes on eating without having a satisfaction. Or we have that lust in us, which drags us. So all these things are there going on. We are, a slave of our senses. But here, what have we to do? We have to have those reins in your hand. They are the horses. They are driving away, but you have the reins in your hand, and that is what is called dam. And that is what I liked it very much over here. So I just had that a small example. So I'll just share it with you. And so we saw all the 4 dwarpas, that is Sham, which are the pure and the impure, which we have been, reading all these days. So removing the impure and have that pure thoughts in you, because every thought is a seed of your karma. So that seed, we have to check every time, what are we sowing? Because that is what we are going to reap, isn't it? And then is the santosh, that is the truth. That contentment which you get. It's not a matter how many and how much you get it. It's not that. They say, happiest man in the world is without a shirt. Then also he can be happy.
But having all that, then also somebody cannot be happy. So that is what is contentment. It is that inner thing. Yeah. So yes, for all worldly things also, you have to have that. Yeah. So that is what is you. It comes with sadhana. Yeah. So Savita ji has a question here. Is that only for spirituality or for worldly also? You know, it is like a bucket is there with a hole in it, exactly in the same way. You put it in the water, the minute you pull it out, what will happen? All water will. Our mind is also with those holes. You know, how much we have got, you know, we are in so much surplus. You see others, they don't have that much also. It's all that, you know, kripa on us, that grace on us that we have all. But if we have a hole in ourselves, it just drains off. It never makes you content. You are always, you know, like this. That is the sign, you know, but we have to be like this. When you are the giver, it means you are contented and then only you can give. You know, कौन दान कर सकता है? जो शाहूकार होगा वही करेगा ना, गरीब कभी दान कर सकता है. So we have to leave our begging bowls and be content. That is the thing. And the last one is the Sangha. That is the Satguru ka Sang and all those good people among we are here. So that is the thing. And being with them, you know, just like I heard in the morning, Yatinji said very nice point, you know, when you see a picture of fear, something happens to you inside. Those hormones are released, you know. You see a picture of full of stress and all, of course you're that mode of that level will come, you know, that cortisol will be coming inside. But when you are with Gurudev, when you are with this company, good company, what happens? The endorphins are released, the dopamine is released, serotonin is released. So these are the happiness hormones which are released. So it makes you, elevates you and makes you happy and joyful throughout the day. So being very brief here, I would like to stop and thank you Someshwarji for this amazing session which you have given us today. Jai Gurudev. And let's you know, instead of asking everyone, no, you spotlight. Varsha Tai, come on. Kusum Tai is not to be seen. So Varsha Tai, yeah, she told me she'll talk, you know, before we had a Guru Puja, we had a talk. So she told me that you pin me up and focus and yes, Varsha Tai, please unmute yourself. मला ना ह्या सगळ्या गोष्टी इतक्या अशा वाटायला लागल्यात की 7-8 वर्षापासून मी योग वसिष्ठचा पूर्ण अभ्यास करायचा प्रयत्न करत होते, पण काही ना काहीतरी अडथळे यायचे आणि ते राहूनच जायचं. आणि आता असं वाटतंय की इतक्या सहज त्याला कसं काय मिळायला लागलं. आणि म्हणजे जसं काय ते एक शरीरात एखादं असं पाझरावं, गुरुजी जसं मेडिटेशन मध्ये म्हणतात ना की चंद्राचा प्रकाश तुमच्या शरीरात, तुम्ही म्हणजे मागून पुढून सगळीकडनं असं, तर तसं संगीताई, सोमेरजी, अंजली या सगळ्या ग्रुपमध्ये ते आपोआप असं पाझरायला लागलंय, असं वाटायला लागलंय. आणि आतून एक असा आनंद खूप आपोआपच वाटायला लागलंय. म्हणजे खरं मी प्रतिकूल परिस्थितीतच आहे, पण तरी सुद्धा त्याचाही मला सगळा विसर होतोय आणि असं वाटतंय की नाही, म्हणजे जे काय घडतंय ते खूप चांगलं घडतंय आणि आपोआप मी ओढली जाते आणि अतिशय ओढ वाटते की असं वाटते कधी सुरू होतंय. त्याच्यासाठी मग बाकीचं म्हणजे ते म्हणतात ना श्रम, तसं मग बाकीचे कार्यक्रम मी बंद केले आणि योग वसिष्ठाला प्राधान्य. पण हे सगळं तुमच्या सगळ्यांचं सुद्धा श्रेय आहे की कुठेतरी तो संकल्प आहे आणि त्याच्यात आम्ही पण सामावलं गेलोय, म्हणून हे पूर्ण होऊ शकते याची मला नक्कीच खात्री वाटते. कारण 7-8 वर्ष म्हणजे मी कोल्हटकरांचं सुद्धा पुस्तक आणलेलं आणि म्हणजे खूप वाचायचा प्रयत्न केला हिंदी, त्यात ओव्याच होत्या त्यामुळे शांतपणे वाचलं तरच ते काही कळायचं. पण सुमनताई म्हणा, संगीताजी म्हणा, मला हे 3 एस, संजयजी,
हे सगळे सक्सेस एकत्र आलेत म्हणून हे सगळं एक असं सोपं झालंय असं मला वाटायला लागले. खूप छान वर्षाताई. जय गुरुदेव. जो अनुभव शेयर केल्याबद्दल इट्स रियली नाइस. अपने साथ सचिन जी भी जुड़ चुके हैं. सचिन जी प्लीज गो अहेड. थँक म्हणजे यू. मला हे योगाच वाटतंय की सगळेच तुम्ही एकत्र आले आणि आम्हाला योग वशिष्ठ मध्ये सक्सेस मिळायला लागलं पूर्ण त्याच. संजय जी पण आलेत आपल्यासोबत. संजयजींचं नाव घेतलं तुम्ही. संजयजी सुद्धा आलेत. जय गुरुदेव सर्वांना. हरे हा गुरु. प्रवासच आता स्वप्नवत वाटतोय आता हा प्रवास. आता संगीताजींनी सांगितलं, किती सुंदर पद्धतीने सांगितलं. आज काय म्हणतात ना, एक एक पॉइंट असा पिन पिन टाईप होतो, टच होतो हृदयाला कुठेतरी. खूप छान वाटते. एक काय म्हणता येईल ना, योग वैशिष्ट्याचा सार जवळपास काय म्हणता येईल कंटेंट उतरता येणार आहेत असं वाटतंय. प्रवास आताची सुरुवात आहे. आतापर्यंत जी मिळालं ती खूप मुबलक आहे. हा प्रवास थांबणार नाही एवढं निश्चित. आज यतीनजी, सोमेश्वरजी, सचिनजी, संगीताजी, हा सगळ्यांच्या बरोबरचा प्रवास अप्रतिम आहे. हे म्हटलं ना, बाकीच्या लाईफ मध्ये कंपॅरिझन करताना हा प्रवासच वेगळंच वाटतंय. हे विश्व इथलं नाही वाटत. वेगळ्या विश्वात असल्यासारखं भास होतो. सकाळी आणि संध्याकाळी हे 2 वेळ आपण आपल्यासाठी कंप्लीट रिझर्व केले असं वाटायला लागले आता. दुसरे कशालाही त्याला या वेळेपुढे महत्व नाही वाटत आता. खूप खूप सगळ्यांचे धन्यवाद. खरंय खरंय अगदी. धन्यवाद वर्षाताई आणि संजयजी. सचिनजी प्लीज प्रोसीड. खूप छान एक्सपिरियन्सेस शेअर केले वर्षाताई आणि संजयजींनी. मला फक्त 2-3 पॉइंट सांगायचे आहेत. एक तर हे जे पुरुषार्थ आहे त्याविषयी स्वामी विवेकानंदांनी म्हटलंच आहे. ते सर्व लोकांना उद्देशून म्हणतात की अमृतस्य पुत्रा, म्हणजे आपण सगळे मोक्षाचे अधिकारी आहोतच आणि म्हणून ते संबोधन करताना अमृतस्य पुत्रा असं म्हणतात. म्हणजे वी आर सन ऑफ इमॉर्टल्स असं ते ॲझ्युम करून म्हणतात. आणि ते म्हणतात की तुम्हाला जर काही हे करायचं असेल तर उत्तिष्ठ जाग्रत वरांनी अप्राप्य बोधत, म्हणजे अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच असं ते म्हणतात. म्हणून ह्या पाथवर जर जायचं असेल तर हा तुम्हाला म्हणजे ते बंगालीत एक पद आहे, एकला चलो रे, तमे एकला चलो रे. तुमच्या आजूबाजूला बरेच काही होत असेल, तुमच्या मनावर बरेच काही होत असेल, तर हे असं एक युद्धासारखं आहे. तुम्हाला अनेक जन्म घ्यायला लागतील किंवा या जन्मात तुम्ही जाताल. एक अखंड अशी श्रद्धा आणि हे ठेवून तुम्हाला हे व्रतासारखं पुढे जायचंय. बाकी काही हे विचार न करता. आणि आता क्षमाविषयी सांगितलं तर क्षमाविषयी मला एक म्हणजे जस्ट असं सांगायचं आहे की क्षम म्हणजे जसं इंग्लिशमध्ये म्हणतात सेल्फ कंट्रोल, हा थोडाफार जवळ जाणारा शब्द आहे. पण सेल्फ कंट्रोल म्हणजे टू बी रिमेन इन द इक्विलिब्रियम within yourself. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल there is a sea and there are lots of rivers, streams coming into there, but it never crosses its limit. So all those impressions, all those actions, everything happens in your mind, but you remain centered in your equilibrium. That is the Shama, and that is, you can say, grounded in peace in yourself, and that reflects in you through your actions. But it is not there in isolated or silence or something. It's in middle of all actions. You remain in silence. So that is what I think is Shama. I can give you 2 stories about it, little 2 small stories. लोकमान्य टिळक होते आणि ते एकदा कोर्टामध्ये केस चालू होती त्यांची तिकडे, आणि बराच खूप मिडल ऑफ केस आणि आर्ग्युमेंट्स वगैरे चालू होते तिकडे. आणि तेव्हा त्यांच्या एका सहाय्यकाने त्यांना एक नोट दिली हातामध्ये. ती त्यांनी वाचली, आपल्या कोटाच्या खिशामध्ये ठेवली आणि तो सगळा खटला लढले, ते सगळं व्यवस्थित हे केलं आणि संध्याकाळी घरी आले. आणि घरी आल्यानंतर काय झालं होतं की त्यांच्या एकुलत्या एका मुलाचं निधन झालं होतं आणि ती नोट त्याविषयीच होती. पण एवढं असूनही त्यांनी ते ॲज ते त्यांचं जे कर्तव्य आहे त्याला महत्व देऊन ते त्या ह्याच्यात राहिले.
आणि ते कर्तव्य त्यांनी पार पाडलं. क्षमाचा हा एक प्रकार आहे की तुमच्यावर कुठल्याही भावनांचं किंवा याचा पगडा राहत नाही आणि यू रिमेन इन युअर इक्विलिब्रियम. तसंच एक दुसरी एक स्टोरी आहे गौतम बुद्धांची. ते एकदा बसलेले असताना एक असा एक वेडा तिरसट असा माणूस आला आणि त्याने खूप शिव्या दिल्या, खूप ओरडला वगैरे असं रागवलं आणि निघून गेला. मग तेव्हा ते काही गौतम बुद्ध काही बोलले नाहीत. मग तेव्हा त्यांच्या शिष्याने त्यांना विचारलं की तुम्ही त्याला रिप्लाय का नाही केला, तुम्ही त्यांना काही बोलले का नाही? तर ते म्हटले, बघ तुला काही कोणी एखादी गिफ्ट दिली आणि तुला ती नको असेल तर तू काय करशील? तर ते म्हणाले, मी घेणार नाही ते. तर ते म्हटले, तसंच मी केलं. त्याने मला शिव्या द्यायचा प्रयत्न केला, मी ऍक्सेप्ट नाही केलं. इट्स सो सिम्पल. सो म्हणजे ते असं नेचर होतं की एखाद्या नदीमध्ये किंवा पाण्यामध्ये तुम्ही अग्नी लावायचा प्रयत्न केला तर ते कधी शक्यच होणार नाही. तर दॅट माइंड बिकम्स लाईक दॅट. सो अँड यू रिमेन इन युअर पीसफुल नेचर. And this will happen once you start doing your sadhana and this thing. I think satsanga is not physical presence of your guru or this thing. Whatever sadhana he has given, if you do it, that is satsanga only. So following whatever sadhana given to you, maybe Sudarshan Kriya or whatever sadhana, that is the presence of guru with you. So if you do that, you will be on the path. It's a long battle, but yes, we should not lose our focus and goal. Thanks. Very nice, beautifully explained by Sachin. So let us address Savitaji's. Yeah, so whenever Niluji is requesting you, whenever we share such stories and analogies, kindly use Hindi or English because Marathi समझ में नहीं आता है. So next time we will address that, Niluji. So there is one question that was asked is Savitaji was asking, Shama and Dhamma is only for spiritual practice or worldly things also or both? It is actually applicable to both. सविता जी ये दोनों के लिए जरूरी होता है. हमने बताया ना जो बच्चा रहता है उसको पढ़ाई करना है और कैसे डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, उसको बोलते चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो कैसे वो क्रिकेट खेलने से मना कर देता है. वो क्या हुआ? दम हो गया ना, सेल्फ कंट्रोल. मेरा टाइम नहीं है, कुछ अपना सोने का टाइम है लेकिन नेटफ्लिक्स चल रहा है, मूवी चल रही है, मुझे नहीं देखना अभी. वो सब दम है, वो सेल्फ कंट्रोल की बात है ना. तो ये सिर्फ अध्यात्म मार्ग चलते समय अप्लाई करने की बात नहीं है, ये डे टू डे रूटीन में भी हमको जब भी आपको उद्देश्य से कोई भटकाएगा तो ये अप्लाई द सेल्फ कंट्रोल. यदि आपका उद्देश्य है फॉर एग्जांपल किसी को आईएएस अधिकारी बनना है, अभी आईएएस अधिकारी बनना माने से 2-4 घंटे का पढ़ाई करके तो आईएएस अधिकारी बनेगा नहीं. नो, एक डेडिकेशन से, जैसे मैंने खुद अभी आईआईटी से एमटेक किया हुआ है, तो उसके लिए एक तुम आपने एडमिशन ले लिया इंजीनियरिंग में, 4 साल आपको पढ़ाई करना है. आपने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, आपको 5 साल पढ़ाई करना है. अभी सडनली बीच में कोई कुछ और आके बोलेगा यार कितना म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है, तो क्या फिर एमबीबीएस छोड़ दोगे, इंजीनियरिंग छोड़ दोगे, है ना? उस वक्त आपको सेल्फ कंट्रोल की बहुत जरूरत पड़ेगी. तो ये तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में तो है ही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसकी जरूरत हमें डे टू डे रूटीन में भी पड़ती है. वही अध्यात्म है. अध्यात्म का मीनिंग ये है कि जो डे टू डे रूटीन में आपके काम आए, नहीं तो क्या फायदा फिर उसका. ऐसा अध्यात्म क्या काम का जिसका तुम्हें डे टू डे रूटीन में काम नहीं है. अध्यात्म का मतलब ही है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है जो डे टू डे रूटीन में आपके काम में, डे टू डे रूटीन में आपको आगे बढ़ाए. तो जरूर ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, वर्ल्डली मैटर्स में भी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में. देन नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हम लोग इसकी बात करते हैं कि जो श्रम और दम की बात हुई, तो श्रम मैंने सेल्फ कंट्रोल नहीं है, श्रम माने पीस ऑफ माइंड, जैसे सचिन जी ने भी बहुत अच्छी तरह से उदाहरण देके भी हमें समझाया. एंड जो दम होता है वो दम माने सेल्फ कंट्रोल, दैट इज द ये. सो दीज आर 6 वैल्यूज बताए, ये ऐसे वर्च्यूज है, दीज आर द वैल्यूज दैट वन नीड्स टू इम्बाइब इन देयर वैल्यू. सो विच आर दो 6 वैल्यूज? तो बोलते हैं कि श्रम, द फर्स्ट वन इज श्रम, सेकंड वन इज दम, थर्ड वन इज उपरति, फोर्थ इज तितिक्षा, फिफ्थ इज श्रद्धा एंड सिक्स्थ इज समाधान. इसमें से तो मोक्ष के 4 में श्रम भी आ गया है और समाधान भी आ गया है. सो बाकी के 4 जो है वो दम, उपरति, तितिक्षा और श्रद्धा है.
If you see the English translation of this Shama means the balance of mind or the peace of mind. Then you have what is Dhamma? Dhamma is the mastery over senses. Then Uparati means observance of Dharma. Then Titiksha. Titiksha माने endurance. आपके जो tough conditions होते उसमें भी how much you are endure. The endurance of the tough conditions. Then Shraddha is a faith. Faith in Shraddha. Shraddha we all know. And Samadhana means we know that contentment. That is a faith. So these are all the Shata Sampatti kaha gaya isko. So Shata Sampatti में Shama is one, Dhamma is another one different. Shama को establish करने के लिए दमा होना जरूरी है. It is very important for not only this dhamma. We need to actually have the other things also. If you are not contented, तृप्त नहीं हो जीवन में, संतोष नहीं है जीवन में, कैसे शांति मिलेगी? मिल ही नहीं सकती. शांत हो ही नहीं पाएगा मन जब तक तृप्ति नहीं हो. So एक one point of time जैसे नींद सो ही नहीं पाओगे आप अगर तृप्त नहीं हो तो, सोता ही नहीं इंसान. At one point of time, your body is designed like that. It will make you drop all these things. But when you are जागरूक, जब आप जागरूकतावस्था में होते हो और जब आपको कुछ अपने उद्देश्य के राह पे चलना होता है, उस वक्त जब ये बाकी की चीजें आएगी, उस वक्त तुम्हें शांत रहना है तो तुम्हें इन सारे टूल्स की जरूरत पड़ेगी. इच्छत संपत्ति में जो बाकी की संपत्तियां बताई उसकी जरूरत, ये सब रिलेटेड एक दूसरे को पूरक हम लोग कह सकते हैं. कुछ यहाँ पे चार्ट पे कुछ है. नीलू जी कहते, नीलू जी आपको बात करना है तो अनम्यूट करके बात कर लीजिए ना, कोई बात नहीं, आप जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ और बात करें. यू आर वेलकम टू ज्वाइन. ऐसे हम लोग यहाँ पे आए हैं हम लोग भी बात करने के लिए, ऐसा नहीं है. यू प्लीज कंट्रीब्यूट इफ यू फील लाइक. No, I just since you were saying that Shama is not self-control, so I just added to it that it could, like the tranquility of mind or the evenness of mind, which doesn't get disturbed by grief or by joy. One could say samta. That's why I was just बिल्कुल बराबर. much. Absolutely. You can call Shama as a peace of mind. You can say it's a samatha, which even Sachin expressed, it's equilibrium. That sthita prajna jisko bolte hain na, the one which is established. So that is Shama, the one who can remain calm in any गीता situation. में एक श्लोक है स्थित प्रज्ञ का, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो. Means Correct. he remains steadfast in all the actions. Means whether there is a good happening with you or any bad experiences, and whether you are winning or losing, at any point of time he remains within himself. Absolutely. बिल्कुल सही बात है. So Shama means that you are able to establish in equilibrium, peace of mind, the one which you feel, no? Peace. That is what is Shama is referred here. Yeah, just let Anagha ji, she's raising her hand. Yeah. Anagha नहीं, ji, मुझे बोलना नहीं है, मुझे सिर्फ पूछना है. अभी उपरति का कुछ अलग मीनिंग आपने बताया, वो मुझे चाहिए था, फिर से बताएंगे क्या? उपरति उपरति मीन्स ऑब्जर्वेंस ऑफ धर्म, जिसको आप में उपरति होती है और जो आपका जो धर्म है उसको आप पालन करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, उसको यहाँ पे उपरति कहा गया है. अच्छा, थैंक यू. और मीनिंग उपरति का एक दूसरा मीनिंग भी है रिपेंटेंस. जो आपने किया उसके बारे में you feel that now enough is enough and now let's start a new path. So that kind of feeling is uparati, basically means where you find now whatever happened in the past, let's whatever bygones be bygones and let's start a new fresh this thing. So that is uparati. हाँ, तो इस तरह से चर्चा से ना ज्ञान बढ़ता है. हम लोग अलग अलग व्यू पॉइंट सुनते हैं ना, इट्स वेरी गुड. दैट्स द रीजन वी से it's a study group and it's not a discourse. It's not a webinar kind of thing that you deliver and nobody will be able to speak to you. No, we are in a study group here. So it's very, very important to come contribute. It's worth doing it. Sabka knowledge बढ़ता है. Thank you so much, Sachin. ठीक है, it's already 9:45 बज चुके हैं. यदि कुछ प्रश्न है मन में तो पूछ लीजिए. If not, then we'll stop here. कल से फिर मोक्ष के 4 दौर को कंटिन्यू रखेंगे. We'll see more about it. ठीक है, रुकते हैं फिर यहाँ पे.
तो आज का यह योग वशिष्ठ का जो 11वां सत्र है हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। पुनः एक बार कल मिलने के लिए जय गुरुदेव। जय गुरु।